Welcome to the world of SMART. My name is Santosh Nair. I am the Chairman and Chief Mentor of SMART Training and Consultancy Services. We are a dedicated entrepreneur solutions providing company. Everything that an entrepreneur requires at different stages in his life, we as an organization provide it in the form of education, training, coaching, counseling and different forms, audios, videos in Hindi, English, Malayalam. We do all these kinds of things for an entrepreneur to go from one stage to another stage. There are 6 stages that an entrepreneur has to move forward. If he has to move forward in life, he has to go through 6 stages. First stage is known as groping stage. The second stage is known as early success. The third stage is known as growth acceleration. The next stage is known as reorientation. After that is corporatization, and the last stage is known as liberation. As an entrepreneur moves from one level to the other level, to the third level, to the fourth level, to the fifth level, if he wants to move through these various stages, he needs to enlighten himself, educate himself on different aspects of life. Otherwise, he will get trapped into his experience Chakravyuh. What's an experience Chakravyuh? An experience Chakravyuh is when you start believing that you have 14, 24 or 30 years of running an organization and therefore you have 14, 30 or 24 years of experience. But experience is a stage where you become comfortable with your ignorance. You only know what you know, you don't know what you don't know, and when you don't want to learn what you don't know, you may get stuck in one of these stages that I just said. So that you constantly keep on moving forward, we at SMART have brought you 7 different products to take you through the 6 different stages. So stage 1, groping stage, we have Orientation Gurukul. Once you do Orientation Gurukul, you will go to stage 2, which is known as early success stage. There you will have to do a program called Foundation Gurukul. When you do Foundation Gurukul, you are ready to go into the third stage, which is growth acceleration. And in order to go from growth acceleration to reorientation, you have to do 2 courses. One is Entrepreneur Gurukul and one is known as Ecosystem Gurukul. In fact, Entrepreneur Gurukul you do it alone, Ecosystem Gurukul you do it with your team members. When you do both these things, you go from the growth acceleration stage to the reorientation stage. Now, in order to move from reorientation stage to corporatization, you will have to go through another program called Advanced Gurukul. From there, because of that, you will go to a stage called corporatization, where you will do a program called Masters Gurukul, and from there, in order to go to the last stage, which is liberation stage of an entrepreneur, you will undergo a course called Nirvana Gurukul. The combination of all these courses will take you from one stage to the other stage, to the next stage, to the next stage, to the next, to the next, to the next. In order to keep you inspired and motivated, at regular intervals, we have large amount of inspirational talks that we give in different cities all over the country. These inspirational and motivational talk, which is known as pep talks, we give under a series called the Multiplier series. So we have a large amount of motivational programs which we can customize for you. If you are an organization, we do customized inspirational talks, and we also have fixed inspirational talks under the Multiplier series. So many programs, confidence multiplier, future multiplier, success multiplier, sales multiplier, productivity multiplier, opportunity multiplier, time multiplier, team multiplier, how to be a tiger in life, the power of being unreasonable, service multiplier, fear multiplier, opportunity multiplier, and many other, leadership multiplier, change multiplier. So under this multiplier series, we do a lot of inspirational talks, for which I invite you, wherever, in whichever city you are, you can be a part of the whole thing. However, if you are unable to be a part of this wonderful program, you can also buy the CDs, the audios and the videos of these programs. So all these programs are available either in English or in Hindi or in Malayalam or in Marathi. We have various of these CDs. We also do workshops. We do various workshops on sales, on leadership, and we have wonderful programs on key accounts management. We have audios and videos of key accounts management. We do a lot of staff training. Our famous program is known as Tiger, T.I.G.E.R, Tiger.
how to become tough, T for tough, how to become ingenious, how to be a go-getter, how to be an enterprising person, how to be resourceful. When you do all these programs, the audios, the videos, the workshops, the inspirational talks, the Gurukul series, and with the special tadka of our personal coaching programs that we do for you, you will be in a position to achieve, exceed and get ahead in life. All the challenges that you are facing today is basically because something we do not know. And that something is with Smart, because Smart is a dedicated entrepreneur solutions company. To know more about us, you can go to our website www.smart.co.in. Smart is SMMART. www.smart.co.in. You can go through our website. You can watch us at youtube.com/SMMARTBUZZ. Smart Bus. Let me repeat, youtube.com/smartbus. That is where you can watch us. You can like us on Facebook, www.facebook.com/SMMART. That's Smart. You can also like me on Facebook personally at www.facebook.com/I am Santosh Nair. IAMMSANTOSHNAIR. You can follow us on Twitter at @Smart Parivar. That is SMMARTPARIVAAR. SMMARTPARIVAAR. You can follow me personally at Twitter at I am Santosh Nair. Once again, Twitter at IAMSANTOSHNAIR. My dear friends, in order to achieve, exceed and get ahead and multiply your success and bring phenomenal growth in your life, always be a part of the Smart Tiger Entrepreneur Parivar. It's a parivar that has been made for you, by you and by all of us to bring about meaningful transformation and quick growth in your life. May life offer you happiness, prosperity and peace and complete achievement of all your goals. Thank you very much and all the best. और लगातार सेल्फ इवैल्यूएशन, हर रात मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता हूं, हर रात अपने आप को इवैल्यूएट करता हूं कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने सही क्या किया, आज मैंने गलत क्या किया। और ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए मैं जैसे थोड़ी देर पहले बताया, मैं कई बुक्स लिखता हूं। एक बुक का नाम है द 21 डे हैबिट एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। रोज अपना कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये किताब लिखता हूं, जिसमें अगर आप देखेंगे ये 12 मार्च का है, तो आज मैंने क्या अचीवमेंट किया ऐसा होता है, ये बुक ऐसा दिखता है। और बाहर आपको मिल सकता है मेजर अचीवमेंट। आज आपका मेजर अचीवमेंट क्या है? आज मैंने 15 जन को जुड़ाया। क्यों? ये एक मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि अभी मेरा टीम 4015 का हो गया। कल क्या करूंगा मैं? कल मैं 20 और को जुड़ाऊंगा। इसी के लिए मैं क्या एक्शन लूंगा? आज रात को मैं 40 जन को फोन करूंगा। कल मैंने जिम गया, कल मैं जिम गया, 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज किया। क्यों? वो एक अचीवमेंट है, इससे मेरा एनर्जी बढ़ेगा। कल क्या करोगे? मैं इसको आधा घंटा बढ़ाऊंगा। उसके लिए स्पेसिफिक एक्शन क्या करूं? मैं जिम में एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करूंगा। इस तरह से लाइफ में एक एक अचीवमेंट को मैं लिखता हूं। 5 अचीवमेंट लिखता हूं रोज रात को, 5। आज मैंने 5 अच्छी क्या अचीवमेंट की? क्यों? वो एक अचीवमेंट है। उसी क्षेत्र में मैं कल क्या करूंगा और उसके लिए क्या कदम लूंगा। रोज मैं जब लिखता हूं 5, फिर कल 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे 21 दिन में 105 बार जब लिखता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट हो जाता है। नेगेटिव चीजें नहीं लिखता हूं मैं, पॉजिटिव चीजें लिखता हूं
कि आज मैं किसी पे गाली नहीं दिया, आज मैंने दारू नहीं पिया, आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने इतने आदमी लोगों को जुड़ाया, आज मैंने बीओपी के लिए इतने जन को फोन किया, आज मैंने बढ़िया बीओपी लिया, ये किया, इसमें से इतना जन को किया। ये रोज मेरा अचीवमेंट का ये मैं लिखता हूं। और ये सब लिखने के बाद मेरा दूसरा बुक का नाम है द सेल्फ लर्निंग एंड कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। आज मैंने जिंदगी से सीखा क्या। जैसे कल 27 मार्च था, कल 27 मार्च को मैंने मेरे एक कलीग को एक लेटर लिखा। उस लेटर की वजह से अभी यहां पर ऐसा होता है, ये ऐसा मतलब राइट डाउन द सीन दैट अकर्ड इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल। आपके लाइफ में जो घटना हुई वो आप लिखिए। घटना अच्छी भी हो सकती है, घटना बुरी भी हो सकती है, तो आप लिखिए। आज मैंने अपने अपलाइन को टोपी लगाया, झूठ बोला कि मैं बीमार हूं, झूठ बोला मैं बीमार हूं, टोपी लगाया कि मेरे घर में फंक्शन है, जबकि मेरे घर में फंक्शन नहीं था। तो आज एक सीन हुआ, सीन लिखा। तो फिर लिखना पड़ता है कि क्या वो सीन पॉजिटिव था, क्या वो सीन नेगेटिव था। अगर पॉजिटिव है तो वो लिखिए कि सीन पॉजिटिव है, और आपने अगर अपने अपलाइन को टोपी लगाया तो नेगेटिव है, लिखिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कैरेक्टर खराब हो जाता है, मेरे को झूठ बोलने की आदत लग जाएगी। क्योंकि नायर साहब बोलते हैं आप आज जो भी है आपकी आदत की वजह से है, और अगर मैंने जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डाली सच बोलने की, तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी झूठ बोलने की। तो मैं आज के बाद क्या करूंगा, ऐसा आपको, मैं अपने आप को इंप्रूव कैसे करूंगा वो लिखना है, और उसके लिए एक्शन प्लान लिखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक एक जो गलत चीजें हो रहा है ना आपके लाइफ में, उससे आप लेसन नहीं सीखेंगे। तो मैं रोज, कल 27 मार्च को देखिए, मैंने 27 मार्च, ये 26 मार्च, 27 मार्च को मैंने कल 2 लेसन सीखा लाइफ से। 26 मार्च से मैंने 1 लेसन सीखा, 25 मार्च से मैंने 1 लेसन सीखा। हर दिन रात को लिखता हूं लाइफ ने मेरे को आज क्या पढ़ाया। बड़ा सिंपल है, बाहर आपको ये बुक मिलेगा। और एक बुक लिखता हूं जिसका नाम है द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज मैं कृतज्ञ, किन किन लोगों पे कृतज्ञ हूं। तो ये देखिए, 27 मार्च को मैं कृतज्ञ हूं हिमांशु और सचिन का, कि उन्होंने मेरे साथ बैठ के नया प्रोडक्ट स्मार्ट के लिए बनाया, ओरिएंटेशन गुरुकुल। मैं कृतज्ञ हूं मिलाप का, जो अपने फील्ड के लड़के लोगों को आज डेवलपमेंट कर रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं यतीन सामंत साहब का, जिन्होंने कल मेरे को बहुत, मेरे में कमियां जो है एज ए चेयरमैन ऑफ स्मार्ट में मेरे में जो कमियां हो, चेयरमैन का वो कमियों को बताया। अब मैं उनको अपना कृतज्ञता कैसे एक्सप्रेस करूंगा। आई विल बाई हिम अ गिफ्ट, अ वॉच, एक वॉच खरीद के दूंगा। और उसके लिए एक्शन क्या लूंगा, सिंधु को बोलना कल एक घड़ी खरीद ले, तो 31 तारीख को दे दूंगा। यार अपने को सुधारा उसने, अपना कंपनी का सीईओ मेरे को रिपोर्ट करता हो, और मेरा सीईओ है, उसने मेरे को इंप्रूव किया, तो मैं कृतज्ञ हूं। तो अगर आप देखिए, अगर रोज रात को हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। मैं अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा हूं, सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा हूं, इवैल्यूएशन कर रहा हूं, और मैं रोज रात को अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं करेक्ट नहीं करूंगा तो मंडे की गलतियां मैं ट्यूसडे को करूंगा, और ट्यूसडे की गलतियां मैं वेडनेसडे को करूंगा, और वेडनेसडे की गलतियां मैं थर्सडे को करूंगा, और पूरे हफ्ते में जो गलती किया वही हफ्ता अगला हफ्ते में पूरा सेम गलती करूंगा। यस और नो, सेम गलती करूंगा। क्योंकि हर रात सोने के पहले मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप 10 जन के पास गए और आपको सेल नहीं मिला, तो आप पूछिए आज रात को, आपको लिखना है कि मैं 10 जन के पास, आपका सीन क्या है। आपका सीन यह है कि आप 10 जन के पास गए लेकिन आपको सेल नहीं मिला। सीन क्या है, 10 जन के पास गया, कोई भी जुड़ा नहीं मेरे साथ, तो थिंग्स एट वर्क। क्या चला ये कि उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, क्या नहीं चला ये नहीं कि उन्होंने जुड़ा नहीं।
वो जुड़े नहीं मेरे साथ। तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने आप को सुधारने के लिए क्या करूंगा? अरे मैंने उनको क्लोजिंग ही नहीं किया, मैंने उनसे चेक मांगा ही नहीं, मैंने उनको जुड़ने के लिए फॉर्म भराया नहीं, मैं कतराया, मैं घबराया, मैं बोल नहीं पाया, ये सब मैं लिखता हूं। फिर मैं नीचे लिखता हूं, कल जाते ही जिसके भी सामने पेश करूंगा उनके सामने बिना कतराए मेरा एक्शन प्लान में लिखूंगा। आप देखेंगे कि मंडे को घबराया हुआ संतोष नायर ट्यूसडे को बिंदास होकर चेक मांगता है। मंडे को 10 जन के पास गए, खाली हाथ आया, ट्यूसडे को 10 जन के पास गया, 3 चेक लेके आया। नायर कल का सेम नहीं रहा, नायर कल का सेम नहीं रहा। पिछले कई सालों से लिखता हूं और फिर मैं कहता हूं कि मैं तो मकाम पे लाइफ में इतना कुछ अचीवमेंट किया, तो मुझे तो लिखने की जरूरत है क्या? है। लोग बोलेंगे सक्सेसफुल होने के बाद लिखने की जरूरत है क्या? नायर साहब, सक्सेसफुल होने के लिए लिखा था और सक्सेसफुल रहने के लिए कंटिन्यू करूंगा। आप एक्सरसाइज करते थे 30 बरस की उम्र तक, फिर आपने एक्सरसाइज बंद किया तो आपका वजन तो बढ़ने वाला ही है। तो वो बोल के तो फायदा नहीं ना, मैं एक जमाने में हेल्दी था, एक जमाने में मेरे को डायबिटीज नहीं था, एक जमाने में मेरे पास मेरा वजन मस्त था, एक जमाने में कच्ची कली हूं, अभी एकदम फोदा पाव हो गया। एक जमाने में मैं खूबसूरत दिखती थी, एक जमाने में मेरा पेट नहीं था, आजकल इसको ऐसा करता हूं, फिर साबुन लगाता हूं, फिर इसको लेके आता हूं, ऐसा मेरा पेट हो गया। एक जमाने में मैं तंदुरुस्त था, एक जमाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं था, एक जमाने में एसिडिटी। आप हेल्थ को चेक कीजिए, आप अपने खूबसूरती को हेल्थ चेक कीजिए। आप खूबसूरत है क्या? आपका वजन बढ़ रहा है क्या? आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं? आपका एंथुजियाज्म बढ़ रहा है कि नहीं? आपका काम करने की शक्ति बढ़ रही है कि नहीं? आपका जुनून बढ़ रहा है कि नहीं? आप प्रोग्रेसिवली अच्छी अच्छी चैलेंजेस ले रहे हैं कि नहीं? किसी रात में लिखता हूं आजकल चैलेंज नहीं लेता हूं, फिर अगले दिन से चैलेंज लेने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है तो बुक लिखो, अगर आपको कुछ भी करनी है तो आप बुक लिखो, नहीं तो आपके पास अपना कोई तरीका होना चाहिए सुधारने का। वो आपका अपना एक टेक्निक है, मेरा वाला ये टेक्निक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम ये करो, लेकिन बाहर बुक मिलेगा। जो मैंने कल वो आइटम को मेरे ऑफिस में समझाया था 21 डे का, और वो बोलता मैं नोटबुक में लिखूंगा। अरे नोटबुक में तू बैठ के वो कॉलम डालेगा, वो जान नहीं आएगी, वो जान नहीं आएगी। वो नोटबुक सुंदरम का नोटबुक है, वो नोटबुक है, वो सुधारने का कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर का वर्कबुक नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बुक नहीं है। बुक के बाहर हमने लिखा है, बुक के बाहर हमने लिखा है ये ट्रांसफॉर्मेशन बुक है, ये मेरे को ट्रांसफॉर्म करेगी, ये मेरे को बढ़िया बनाएगी। वो 200 पेज का नोटबुक मेरे को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि वो बुक का मकसद वो नहीं है जो ये बुक का मकसद है। लेकिन अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट 45 मिनट ट्रैफिक में जाना पड़ेगा। फिर एक तो जाओ अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट, फिर वो रहता होगा वसई विरार में, फिर वहां से वापस स्टेशन आओ। तो वो जो दर्द है ना, दर्द, वो दर्द लेना नहीं चाहता था। और जो आदमी दर्द नहीं ले सकता, तकलीफ नहीं ले सकता, वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो फिजिकल दर्द, मेंटल दर्द, इमोशनल दर्द लेने पड़ेंगे। ये जब तक नहीं करोगे तब तक आप जीरो से हीरो। ये जलने का बात है, अपने आप को जला रहा हूं। अगर वो ट्रैवल कर लेता तो मतलब वो अपने आप को जला रहा था, वो अपने आप को तैयार कर रहा था, वो जलने वाला था कल। लेकिन उसने क्या किया? बोले कौन जलाएगा, ठंडा होके बैठा। अब वो मैं अगर वापिस 1 घंटे में नहीं आता था, फिर मैं उसको बोला अच्छा अब तो ईस्ट में मत जा, मेरा घर इधर बाजू में है, मेरे पास कॉपी है तो कल मेरे से ले लेना। लेकिन वो नहीं आया मेरे घर में, जो बाजू में था 2 मिनट, ना ही उसने आदमी को भेज के मंगाया। और मैंने परसों के दिन जब उसको पूछा कि भाई तेरे को लाइफ में क्या करना है, बड़े ताव से लिखा मेरे को अंग्रेजी सीखना है, करना है, वो करना। टोपी लगा रहा हो, 37 का हो गया, चूना लगा रहा है मेरे को, मेरी ही कंपनी का आदमी,
चूना लगा रहा हूं। और अगर मेरे होते हुए वो ये कर सकता है, मेरे जैसा आइटम के सामने ऐसा टोपी लगा सकता है, फिर दुनिया में कौन उसको सुधार सकता है? और लिखता है नीचे कि मेरे को एसयूवी चाहिए, मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए। उसका मैंने परसों के दिन सपना की पूछा, तब मैंने उसको कल शाम को ये बताया करना क्या है। लेकिन सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत अदा करनी है, ज़िग ज़िगलर से आप बोलते हैं हमेशा, यू गॉट टू पे द प्राइस। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी सक्सेस के लिए। यू गॉट टू पे द प्राइस। एक कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज के लिए। तो मैं अपनी कंपनी का पिछले 48 घंटे का कहानी तुम्हें बता रहा हूं। मेरा ही लड़का, जिसको मैं रास्ता बता रहा हूं, और जो बता रहा है वो दिन में 7 लाख कमा रहा है, और जो सुन रहा है उसने 7 लाख साल का कभी साथ में देखा नहीं। उसको मैं रास्ता दिखा रहा हूं। लेकिन गरीब लोगों की प्रॉब्लम है ये कि उन्हें अमीरों की बात समझ में नहीं आती। एक जमाने में मैं भी उसके माफक जीरो ही था। अब कोई रास्ता बता रहा है तो देख लो और जान लो। जैसे आज मैं तुमको बोलता हूं कि ये सब चीजें मैं कर रहा हूं, ये सब चीजें मैं कर रहा हूं। सो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, आप भी बाहर आपको बहुत सारे सीडी मिलेंगे, आत्मविश्वास बोल के सीडी। ये सब एमएलएम की सीडी है। चैलेंजेस आर टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। चैलेंज तो टेम्पररी होता है लेकिन सक्सेस तो परमानेंट होता है। और बहुत सारे सीडी हैं। एक नेटवर्कर की मौत बोल के ये मैंने सीडी पूना में किया था, ड्रीम बिग टू सेल बिग। ये सीडी अगर आप देखेंगे, हार्ट ऑफ ए चैंपियन, जीत की जंग, ये सब एमएलएम की सीढ़ियां हैं। इसमें कई अच्छी अच्छी बातें, जीतो हर हाल में हर काल में, द पावर ऑफ पर्पस। ऐसा करते करते कितने सारे एमएलएम का विजेता, एमएलएम का मैजिक, ऐसे एक एक सीडी में। ये कौन से कंपनी के लिए किया गया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 5 का दम, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ मल्टीप्लीकेशन, जीरो टू हीरो, ऐसे कितने सारे। और हर सीडी में कुछ न कुछ नया, अलग, डिफरेंट, नया, अलग कुछ पेश किया है। उन सब चीजों को तुम्हें स्वीकारना है और तुम्हें आगे बढ़ना है। जैसे आज का ये सीडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज का ये सीडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाहर 600 रुपया दे के बुक कर लो और तुम्हें 15 दिन में वो सीडी मिल जाएगा। बार बार बैठ के नायर का ये सीडी को देखो, उसकी एक एक बातों को समझो। 100, 150, 300 बार ये सीडी देखो, उसकी अंदर की गहराई को समझने की कोशिश करो। मारने दो संतोष नायर को, तुम्हारे को हर दिन 1-1.5 घंटा उस सीडी के थ्रू करने दो। वो तुम्हारा तुम्हारे को तोड़ने दो। तुम्हें वो तुम्हें काट रहा है, कट कर रहा है। तुम वो मूर्ति हो, तुम वो पत्थर हो, तुम वो डायमंड, रॉ डायमंड हो। तुम्हें वो मार रहा है सीडी के थ्रू, तुम्हें वो करने के लिए मजबूर कर रहा है, तुम्हें चिंगारी दे रहा है, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है, तुम्हारे अंदर जुनून बढ़ रहा है, तुम्हें बता रहा है कि तुम में कमी क्या है, तुम्हें उकसा रहा है, तुम्हें अपनी अमीरी का वास्ता दे रहा है, तुम्हें अपने बच्चे याद दिला रहा है, तुमसे कुछ न कुछ करवा रहा है। उसकी बातों को सुनो और उसकी बातों को करो। या तो फिर आज रात को बोल दे जाके अपने बीवी को और बच्चे लोग को, मैं गरीब था, मैं गरीब हूं और तू गरीब रहेगी। बोल दो अपने बीवी बच्चों को, बोल दो अपने मां बाप को कि तुम्हारा बेटा नालायक है, कि सेमी डायरेक्ट में मौका मिलने के बावजूद भी, इतना बढ़िया कंपनी में मौका मिलने के बावजूद भी, माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सक्सेसफुल लोगों ने वो आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों ने वो आदत क्यों डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। Why do successful people develop those habits that they dislike themselves? क्यों अमिताभ वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता? क्यों विश्वनाथन आनंद जो चेस का सरताज माना जाता है वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता? क्यों संतोष नायर वो करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता और कई सालों से वो कर रहा, अब तो आदत हो गई,
अब तो 5:15 बजे उठने की आदत हो गई, बुक पढ़ने की, अभी तो कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि बॉडी को आदत हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में बॉडी को आदत लग जाती है, कोई भी आदत की, अच्छा या बुरा। लेकिन फिर भी सक्सेसफुल लोग वो सब क्यों करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। बिकॉज बाय डूइंग द थिंग्स दे डोंट लाइक टू डू, दे कैन अकम्प्लिश द थिंग्स दे वांट टू अकम्प्लिश। मतलब अगर आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको डायमंड बनना है, आपको चेयरमैन बनना है, आपको वो चाल से 2 बेडरूम हॉल किचन में जाना है, आपको अपनी बेटी को सेंट बायसिस इंस्टीट्यूट में भेजना है पूना में फैशन डिजाइनिंग के लिए, जहां पर 7-7.5 लाख साल का कोर्स का फीस है। आपको 22 लाख रुपया चाहिए 3 साल का, 4 साल का, या 30 लाख रुपया चाहिए आपका बेटी को फैशन डिजाइनिंग करने के लिए। तो वो आपको चाहिए, तो आप वो कीजिए सैमी में जो आपको अच्छा नहीं लगता। सैमी जरिया है तुम्हारी बेटी का फैशन डिजाइनिंग के लिए। सैमी जरिया है तुम्हारा 2 रूम किचन से 4 बेडरूम हॉल किचन जाने का। सैमी जरिया है वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे को छोड़ के एक बढ़िया सा ऑक्टाविया स्कॉडा लेने का। सैमी जरिया है तुम्हारे फादर के उधारों को चुकाने का। तुम्हारा काम तुम्हारा जरिया है, और तुम लोग उस टाइप के काम में हो जहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकम होता है। तुम कोई अकाउंटेंट का काम नहीं कर रहे हो कि ये साल तुम्हारा पगार 20,000 रुपया, अगले साल वो 24,000 रुपया हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा आज के तारीख में अगर तुम अकाउंटेंट हो और अगर तुम फुल टाइम सैमी में काम करते हो, तो तुम्हारा 2.5 लाख रुपया हफ्ते का आ सकता है, या 2 लाख रुपया आ सकता है, या 3 लाख आ सकता है, या जो भी है डिपेंडिंग अपॉन द आइडिया, जो भी तुम्हारा टेक्निक है, उससे तुम उस तरह का रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन और जनरेशन कर सकते हो। सैमी जरिया है, इसकी इज्जत करो, इसकी सलामी करो, इसकी उल्लंघन नहीं करो। यही मैं बोलता हूं, मेन फॉर्म हैबिट्स एंड हैबिट्स फॉर्म फ्यूचर। आदमी आदतें डालता है और आदतें उसकी फ्यूचर बनाता है। संतोष नायर आदतें डालता है और उसकी आदतें उसकी फ्यूचर बनाती है। एंड देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डोंट फॉर्म गुड हैबिट्स, then unconsciously unknowingly you will form bad ones। का मतलब है अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के सुबह उठने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में 9 बजे तक सोने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रीडिंग की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में न रीडिंग की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के टाइम पे पहुंचने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में लेट आने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज बढ़िया कपड़े पहनने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में एकदम गरीब टाइप के कपड़े पहनने की आदत लग जाएंगे। अगर जानबूझ के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ट्रेनिंग नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो अनजाने में इसको डेवलप न करने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के रोज रात को सोने के पहले वो किताबें नहीं लिखोगे तो अनजाने में मंडे किया हुआ गलती अगला मंडे और जिंदगी भर का मंडे में तुम वो सेम गलतियां रिपीट करते रहो। जानबूझ के तुम्हें अच्छी आदत डालना है, क्योंकि अदरवाइज अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के सुबह उठ के जॉगिंग नहीं करूंगा तो अनजाने में मेरा वजन बढ़ जाएगा। अगर जानबूझ के 50 की उम्र में जवान नहीं दिखूंगा तो अनजाने में 50 में एकदम बुढ़ो लगेगा, क्योंकि मेरा ये वादा था अपने आप से जिंदगी भर जवान रहूंगा और 120 तक जीने का अपने को। 70 साल बाकी है, कच्ची कली रहना है। तो तुम्हारे जितने भी प्रोडक्ट से भिजवा दो तो मेरे को, जरा मैं खा पी के जरा सेटिंग हो जाते हैं मेरा। सो लिवर वीवर अपना ठीक ठाक रहे, अपन बाकी सब चीजें अपने को कैंसर लगे नहीं, इसके लिए तुम्हारे सैमी के प्रोडक्ट्स खा लेते हैं। फिर फेस वॉश भी लगा देंगे, मॉइस्चराइज भी लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे। एंड वो सब चीजें अपने को करना है
और वो सभी चीजें हैं जो अपने को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। तो मैं हमेशा पूछता हूं कि लोगों को एमएलएम में या नेटवर्क मार्केटिंग में वो कौन सी एक बात है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो ना सुबह उठते हैं, जिसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से वो फील्ड में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से वो फोन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो बीओपी में आदमी को लाते नहीं है। वो कौन सी नापसंदी है जिसकी वजह से वो ये सब नहीं करता? तो बहुत स्टडी करने के बाद मुझे एक ही चीज नजर आया, हम सबको एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नापसंदी की वजह से ही हम वो नहीं करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो कौन सी एक बात है जो आपको और हमको और हर एमएलएम का आदमी या नेटवर्कर को अच्छा नहीं लगता? वी डोंट लाइक समथिंग, हमें कुछ चीज पसंद नहीं है। वो एक कौन सी चीज है जो हम नापसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मार्केट में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें एक चीज पसंद नहीं है। और वो एक चीज जो हमें पसंद नहीं है वो ये, वी डोंट लाइक टू कॉल ऑन पीपल हु डोंट वांट टू सी अस एंड टॉक टू देम अबाउट समथिंग दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट। देखो माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें जिंदगी भर उस आदमी को मिलना है जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तुझे वो बात करनी है जो वो तुझसे करना नहीं चाहता। तुझे जिंदगी भर किससे मिलना है? उस आदमी से जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तुझे उससे क्या बात करनी है? वो जो तुझसे करना नहीं चाहता। मुझे जिंदगी भर एज एम एमएलएम मैन या एमएलएम वुमेन, एमएलएम की लड़की या एमएलएम का आदमी होने के नाते मुझे जिंदगी भर रोज उस आदमी को मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और मुझे उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। समझो मेरे बाजू में एक टीचर रहती है और मैं चाहता हूं कि टीचर को मैं अंदर करूं, मतलब अंदर बोले तो सहमी में अंदर करूं। वो टीचर मुझसे मिलना नहीं चाहती और वो मुझसे वो सुनना नहीं चाहती है, और वो मेरे को वो बोलने नहीं देगी जो सहमी के बारे में। लेकिन जिंदगी भर मेरा काम एक ही है, ऐसे हर वो टीचर जो मुझसे मिलना नहीं चाहती है उसके पास जाना है और उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहती है, जो कि सहमी। मैं जिंदगी भर उन्हीं से मिलूंगा जो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, और मैं उनसे वो बात करूंगा जो वो मुझसे करना नहीं चाहते। हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है ना, वो मिलना चाहते हैं जो हमसे मिलना चाहते, और उससे वो बात करनी चाहते हैं जो वो हमसे सुनना चाहते। ऐसा आइटम तुमको मिलने वाला ही नहीं है। जिंदगी में तुम्हें वही लोग मिलेंगे जो तुम्हें नहीं मिलना चाहते। मेरे को बताओ सोले साहब, आप जब भी किसी को मिलने जाते हैं एमएलएम में, आपको कोई आदमी ऐसा नहीं बोलेगा जैसे आप गए ना, बोले मैं सहमी से आया हूं, एमएलएम सहमी से आया हूं, ऐसे तो वो ये कभी नहीं बोलेगा सोले तू कहां था, इतने साल से कहां छुपा हुआ था, मेरी आंखें तेरे को देखने के लिए तरस गई थी, मुझे एमएलएम ज्वाइन करना है, कई सालों से मैं एमएलएम ज्वाइन करना चाहता था, मुझे डायमंड बनना है, मुझे ये टीचर का काम छोड़ना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना। सोले तू कहां था? ऐसा तेरे को एक भी आदमी मिलेगा क्या? मिलेगा यस और नो? तुम्हें लाइफ में ऐसा एक भी कुत्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें जिंदगी भर सोले वही मिलेगा जो तेरे साथ सोना ही नहीं चाहता। भले तेरा नाम सोले 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 है, लेकिन तेरे साथ कोई सोना नहीं चाहता है। तुझे जिंदगी भर उसी से मिलना पड़ेगा जो तेरे साथ सोना नहीं चाहता है, और उसे रोज तेरे को सुलाना पड़ेगा। कोई तेरे साथ सोना नहीं चाहता। तेरे साथ किसी को सोने का नहीं है, लेकिन तेरे को वो पकड़ने का है उसको, और उसको सुलाने का है। सुलाने के बाद जब उसका चेयरमैन डायमंड पैदा होगा,
तब उसको विश्वास आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जब दरवाजा नॉक करता था, जब आज से 30 साल पहले जब दरवाजा नॉक करता था, मुझसे कोई मिलना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं मिलना चाहता था। मुझसे कोई मिलना चाहता ही नहीं था और मुझसे वो वैक्यूम क्लीनर की बात कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन जिंदगी भर मैं उन लोगों को मिला जो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, और मैंने उनसे वो सब बातें की जो वो मुझसे नहीं करना चाहते थे, और तब जाके उनमें से 100 में से 10-10 आदमी ने मेरे को चेक दिया, और उस चेक का नतीजा है वो बाहर खड़ा हुआ 1 करोड़ का मर्सिडीज। तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें एक चीज समझ लेना पड़ेगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम फोन करें तो बोलना चाहिए आ जा, कितने साल से मैं तेरी इंतजार कर रहा था। ऐसा एक भी आइटम अवेलेबल नहीं है। तुम्हें वो ही मिलेगा जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और तुझे उससे मिलके वो बात करनी है जो तेरे से करना नहीं चाहता। एंड ये नापसंदी की वजह से लोग लिस्ट ही नहीं बनाते। तुम्हारा अपलाइन बोलता है लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, अपना नेचुरल लिस्ट बनाओ, लोगों का लिस्ट बनाओ। लेकिन अपलाइन ही आज तक नहीं समझ पाया कि डाउनलाइन ये बनाता क्यों नहीं। क्योंकि डाउनलाइन क्या बोलता है लिस्ट बनाने का, किसका? मिलना नहीं चाहता, और उससे क्या बात करने का जो वो मुझसे करना नहीं। सर माली वेट लागला का मला मैं लिस्ट बनाऊं, लिस्ट बना के भी वो मेरे को मिलना तो नहीं चाहता ना, तो मैं काय को लिस्ट बनाऊं? वाई शुड आई मेक द लिस्ट? क्योंकि लिस्ट कितना भी बने तो वो सब वही है जो मुझसे, और मुझे उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना। और ये बात सक्सेसफुल लोग समझ चुके हैं। मेरे ऐसे आइटम 30 साल पहले समझ गए कि जिंदगी में उसी को मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहता है, उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। और इसके लिए अपने पास 2 चीजें, एक तो बेशर्मी का डिग्री, हरामीपन का पीएचडी। तो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं तो मिलना चाहता हूं। टीचर मेरे से मिलना नहीं चाहती। टीचर, मैं अगर दरवाजा नॉक करूं तो टीचर बाथरूम में, मतलब टीचर रूम में छुप जाती है। मैं रूम में नॉक करूं तो टीचर बाथरूम में छुप जाती है। मैं बाथरूम में नॉक करूं, टीचर पाइप से नीचे उतरती है। मतलब बाथरूम के खिड़की खोल के वो कांच तोड़ के पाइप से नीचे उतरती है, और जब वो नीचे उतर रही है मैं नीचे खड़ा हूं, आओ टीचर। तो फिर टीचर बोलती है सोडनार नहीं, नहीं मतलब जुड़ने के बाद ही छोड़ेगा। बोले हाँ, किती द्यायचं? 6500। चला या, फिर वो देती है। जब वो समझ जाती है कि किसी भी तरह से ये पाइप में से भी उतरने के बाद भी मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, तब 6500 या 11000 रुपया वो देगी और वो जुड़ेगी। जुड़ने के बाद उसको अपन सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सीढ़ी दिखाएंगे, उसको अपन अच्छा अच्छा तरीके दिखाएंगे, सेलिंग सिखाएंगे। उसके बाद टीचर जो 30,000 रुपया कमाती थी, महीने का 3 लाख कमाएगी। तब जाके टीचर को हमेशा ऐसा लगेगा वो तुम अच्छा हो गया मेरे को पाइप में पकड़ा। लेकिन टीचर जब तक 3 लाख नहीं कमाएगी तब तक टीचर को आंख में चोली खेलेगी। हम जानते हैं हम टीचर का लाइफ बना के छोड़ेंगे। टीचर खुद नहीं बनाना चाहती अपना लाइफ, टीचर को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि 19 साल से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो टीचर इतना छोटा कमा चुकी है कि अपना विश्वास ही गवा चुकी है की मी काहीतरी मोठा करू शकणार। उसका कॉन्फिडेंस 0 है, उसका कॉन्फिडेंस 0 है। और अगर उसका बदनसीबी है कि उसका हस्बैंड ही आड़ा टेढ़ा आइटम है जो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो वो रोज सुबह उसकी औरत को सुना अपना नसीब ही ऐसा है, अपना नसीब ही ऐसा है। उसके बच्चे लोग को भी वो लगातार बोलेगा है ना, अपन ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। ऐसा वो अपने बच्चे लोग को एडजस्ट करा देगा, वाइफ को एडजस्ट करा देगा। टीचर भी अपनी छोटी दुनिया में 20,000 30,000 में खुश।
छोटी जिंदगी जीने की उन्हें आदत लग गई, क्योंकि छोटा पगार कमा के, छोटा पगार कमा के, छोटा पगार कमा के, छोटा पगार कमा के, छोटे घर में रह के, गधा हस्बैंड के साथ 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 रह के, गधे के साथ रहने की और छोटा सोचने की और छोटे जगह पे रहने की। आप में से कईयों को अपना हस्बैंड याद आता होगा। ये करना है। किसको मिलना है? किसको मिलना है लाइफ में अपने को? और क्या बात करनी है? बस बिंदास होके करने को चालू करो आज शाम से। So my dear friends, अब ये सब के लिए तुम्हें विश्वास जरूर होना पड़ेगा। तुम्हारे को विश्वास रखना पड़ेगा। मेरे को ना वैक्यूम क्लीनर पे इतना विश्वास था कि मेरे को ऐसा लगता था कि आदमी शादी नहीं करे लेकिन वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। मेरे को भयंकर विश्वास था। मैं जब फायर एक्सटिंग्विशर बेचता था, फायर एक्सटिंग्विशर लाल कलर का सीज फायर, तो मेरे को ऐसा लगता था आदमी उसको लेके ही सोना चाहिए रोज रात। भले बीवी बाजू में नहीं रहे लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे और कंपनी पे कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन तो कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए और सर्विस पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हें सैमी पे भरोसा होना चाहिए, सैमी के प्रोडक्ट्स पे भरोसा होना चाहिए और सैमी के सर्विस पे भरोसा होना चाहिए। तुम्हारे को कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप देखिए आपका कंपनी कितना महान है, देखिए 3000 कंपनियां हैं एमएलएम की दुनिया में। 3000 कंपनियां, 3000 कंपनियों का एसेट को मिला दो तो सैमी डायरेक्ट का मालिक के पास अकेला उतना वेल्थ है। 17 रिसर्च लेबोरेटरीज है, 17 रिसर्च 17 एकड़ के जमीन पे रिसर्च लेबोरेटरीज है। 3 अवार्ड मिल चुके हैं, 3 अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च कैटेगरी के 3 अवार्ड मिल चुके हैं। ऐसा कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं है जिसका इस तरह का सॉलिड बैकग्राउंड है। गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया का एग्रीमेंट विद मिस्टर मोहम्मद माजिद के साथ, और इस आदमी को मैं पर्सनली जानता हूं। अगर आप देखेंगे बैंकर फैक्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और फैक्ट्रियां, बेंगलोर में फैक्ट्री, 3-4 फैक्ट्री उधर, अमेरिका में फैक्ट्री, हैदराबाद में फैक्ट्री, इस तरह का जबरदस्त फैक्ट्री ऑपरेशन सभी जगह पे आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोहम्मद माजिद साहब के बारे में एक किताब में लिखा गया है, उस किताब का नाम है स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, जिसमें बहुत ही गहराई से उनकी पर्सनालिटी और उनके शैली के बारे में लिखा हुआ गया है। और अगर आप देखेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कैंसर तक को ट्रीट कर सकती है, 40,000 करोड़ का एसेट्स है ये कंपनी के पास, 1000 स्टाफ है अदर देन द एमएलएम पीपल, 150 टॉप क्वालिटी के साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट भी कौन, ऐसा रोड साइड नहीं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस एंड वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट के फाइनेस्ट साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, द बेस्ट ब्रेन्स। और अपना कंपनी सैमी जो है वो हर्बल लाइफ हुआ या एमवे हुआ, फाइजर हुआ, रैनबैक्सी हुआ, जो दुनिया की बेहतरीन फार्मा कंपनी है, उनको माल सप्लाई करते हैं हम लोग। और अगर आप देखेंगे इस दुनिया में जितनी भी परफ्यूम बनाने वाली कंपनी है, 95% प्रोडक्ट्स हम लोग उनको सप्लाई करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे
1988 में शुरू हुआ ये कंपनी। 1975 में मोहम्मद मजीद साहब यहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं, फार्मा में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टरेट करते हैं, अमेरिका में जाके 3 साल में इन सम ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज में काम करते हैं। फाइजर में एक ही प्रोडक्ट लाइन जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट लाइन में इतने साल से काम करते हुए 25 साल से या 28 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ ये कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 4 साल से काम करने वाला ये कंपनी, इसके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो जोरा जो बोल के हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे डिटॉक्स प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ के लिए, स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स है, 500 इंक कंपनीज, अमेरिका में अमेरिका इंक बोल के 500 टॉप कंपनीज है, उन 500 टॉप कंपनीज में 77th रैंक में आने वाला ये कंपनी, रैंक्ड इन न्यू जर्सी में इनका जो फैक्ट्री है वहां पर 7th रैंकिंग कंपनी है। ये 50 फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये कंपनी माना जाता है। सुपर क्रिटिकल फ्यूल एक्सट्रैक्शन जो आईआईटी बॉम्बे में किया, और जब इसका लॉन्च हुआ माशेलकर साहब वगैरह जो है, जो CISR सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो मेन लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप जो इसका है। और अगर आप देखेंगे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो कैलिब्रेशन की सब सर्टिफिकेशन करते हैं, उस सब का सर्टिफिकेशन और केमिकल लैब्स का ISO 22000 सर्टिफिकेट है इसके पास। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 98 पेटेंट्स रॉ मटेरियल पेटेंट किए हुए, 98 रॉ मटेरियल पेटेंट किए हुए, 150 पेटेंट पाइपलाइन में अभी है पेटेंट करने के लिए। और ये पेटेंट कवरेज अगर आप देखेंगे ये पेटेंट कवरेज इंडिया में, अमेरिका में, स्वीडन में, यूरोपियन कंपनीज जितने भी जगह पे पेटेंट मिलना मुश्किल है, यूरोपियन कंट्रीज में पेटेंट मिलना आसान नहीं है। तो स्विट्जरलैंड हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, डेनमार्क हुआ, ग्रीस हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, जर्मनी हुआ, इस तरह पोर्चुगल हुआ, ये सभी कंट्रीज में जो तुम्हारा एक जो नाम है पेटेंटेड रजिस्टर्ड है, इन जापान, इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड, ये सब बहुत भयंकर डिफिकल्ट कंट्रीज है। अगर आपको पेटेंट चाहिए तो अपना जो प्रमोटर है, जो साइंटिस्ट है डॉक्टर मोहम्मद मजीद, वो खुद एक साइंटिस्ट है, वर्ल्ड के नंबर 1 आयुर्वेदा एम्बेसडर इंडिया से माने जाते हैं। 2 लाख आदमी लोग नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, फॉरेन टूर्स देते हैं विथ योर फैमिली। अभी मेरे को धनोरिया साहब बोल रहे थे कि 3 महीना पहले भी स्विट्जरलैंड में, और इस तरह से पूरा 90 फैमिलीज के साथ हांगकांग में और स्विट्जरलैंड में इस तरह का तुम्हारे को टूर, लीडरशिप बोनस, लीडर्स 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स है, बाइनरी प्लान है, 1 करोड़ तक का रिवॉर्ड्स है उसके अंदर, बाइनरी रिवॉर्ड्स, बाइनरी फॉरेन टूर्स है, वीकली प्लान है, टीम बोनस है, रिवॉर्ड्स है, घड़ी है, घोड़ा है, गाड़ी है, स्पार्क ऑल्टो गाड़ी है, एजुकेशन फंड है, सलोन कार से 5 लाख, 12 लाख, 20 लाख का गाड़ी, हाउसिंग फंड 50 लाख का, मंथली रीपर्चेस प्लान, रिटेल बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, बिजनेस डेवलपमेंट फंड, ईयर एंड फंड, इंटरनेशनल हॉलीडेज, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस बोनस, जनरेशन प्लान्स, ऑपरेशंस इन मलेशिया। तुम पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, नो लिमिट ऑन अर्निंग, ओवरहेड्स तुम्हारा कोई है नहीं, यू हैव, ये बिजनेस तुम इनहेरिट कर सकते हो, ना ही तुम्हारे को कल सुबह उठ के कोई इतना टारगेट ही करना है, लाइफ लॉन्ग इनकम है। क्या नहीं है एजुकेशन सेमिनार से, जैसे आज ये एजुकेशन सेमिनार तुम्हारे सामने हो रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तुम डायरेक्टर बनो, उसके बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर, उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बनो, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, चेयरमैन, न जाने क्या क्या, इस तरह से तुम ये सब बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, और अगर तुम माला माल नहीं हो सके हो
तो इंडिया का सबसे बड़े गधे हो तुम। मतलब अगर इसके अंदर तुम गेम नहीं खेल सकते हो तो आज शाम क्यों, वैसे भी तुम्हारा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। अब इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें ये सब काम करनी है। और गुड बात यह है कि तुम सेल्स के लाइन में जुड़े हुए हो। सेल्स की लाइन में खास बात क्या है? सेल्स की खास बात यह है कि वाई सेल्स इज ए करियर। इसको एक करियर करके आप ले लेना कि आप सेल्स में जुड़े हो, और इसको एक करियर करके लेना। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स ही है एक करियर, और एमएलएम ही है एक करियर जिसमें आप अपना चेक खुद लिख सकते हो। यानी मेरे को ये महीने में अगर 5 लाख चाहिए तो आप 5 लाख का चेक लिख सकते हो। सो जितना आपको चाहिए सेल्स में आपको वो मिलेगा। फास्ट ग्रोथ मिलता है, हाई ग्रोथ मिलता है। आपका एटीट्यूड काफी चेंज होता है। अगर आप एक अकाउंटेंट या टीचर रहेंगे तो आपको रोज नया सिचुएशन नहीं मिलता। टीचर की लाइफ सेम रहती है, वही 20-50 बच्चे, और सुबह से शाम वही बोलते हैं शिवाजी वॉज ए किंग, और 20 साल से वही बोल रही है शिवाजी वॉज किंग। बच्चे बैठे रहते हैं, कोई डिस्प्यूट करता नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, एवरी डे शिवाजी इज किंग। सो वो टीचर या अकाउंटेंट, उसके लाइफ में, अकाउंटेंट के लाइफ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम जैसे सेल्स के बंदे हर दिन नया सिचुएशन फेस करते हैं, एंड देयरफॉर हमारा एटीट्यूड भयंकर डेवलपमेंट होता है। हमारे को नई नई वैल्यू एडिशन करने पड़ती है, अपने को जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, अलग अलग आदमी से मिलना पड़ता है, अलग अलग लोगों को पटाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, उनके मन को बदलना पड़ता है। इनडिसिप्लिन्ड आदमी को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, नालायक को लायक बनाना पड़ेगा, छोटा सोच वाले को बड़ा सोच की तरफ अपने को लेके जाना पड़ेगा। जिसे लीडरशिप नहीं आती हमें लीडरशिप सिखाना पड़ेगा, जिसे सेल्स नहीं आती हम उसको सेल्स सिखाते हैं, जिसे मीटिंग लेने नहीं आता उसे मीटिंग पढ़ाते हैं, जिसे प्रेजेंटेशन लेने नहीं आता उसे हम प्रेजेंटेशन कैसा देने का ये सिखाते हैं, जो चैलेंज नहीं ले रहा उसे चैलेंज लेने की कलाकारी सिखाते हैं, जो 1 रूम किचन में पिछले 20 साल से रहता है उसे 4 रूम की तरफ हम लेके जाते हैं, जिसने जिंदगी में नहीं सोचा कि टोयोटा प्राडा या टोयोटा फॉर्च्यूनर लेगा उसे हम वो लेके देते हैं। और वो चीजें जो वो विश्वास नहीं कर सकता, वो ये सोच नहीं सकता, हम उसके लाइफ को बदलता है। ये सेल्स की ताकत है, ये प्रोफेशन का ताकत है। और ये एकमात्र प्रोफेशन है जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है। एक अकाउंटेंट चाहे 40,000 रुपए में भी एक टोयोटा प्राडा नहीं ले सकता या टोयोटा फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता। एक टीचर मरने के पहले भी स्क्वाडा नहीं ले सकती। लेकिन जैसी वो हमारे लाइन में आती है, उसके जितने सपने थे जिसको उसने मार दिए हैं पिछले 20 साल में, उस टीचर ने या उस ऑटो वाले ने या उस अकाउंटेंट ने या वो जो आदमी जो नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट में या किधर भी काम कर रहा है, बीएमसी में जिधर भी वो काम कर रहा है, उसने अपने सपनों को जो मार दिया, उसके बच्चों ने अपने सपनों को मार दिया, उसके बीवी बच्चों ने ये सोच लिया कि आता काही मोटा होणार नहीं आमचं जीवनात। वहां पर ये सेल्स काम में आता है और ट्रिमेंडस पर्सनल पावर आपको ये प्रोफेशन देता है। लेकिन ये लाइन की खाली एक ही तकलीफ है, इससे बहुत सैक्रिफाइस है, इसमें बहुत सैक्रिफाइस है। इसमें टीचर का चॉइस है कि सिंपल 7:30 बजे घर से निकलो, 12:30 तक काम करो, 1:30 बजे घर आओ। उसमें सैक्रिफाइस नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन वो सैक्रिफाइस से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। कितना भी वो टीचर डबल मेहनत कर लेवे, समझो पेपर जल्दी करेक्ट कर लेवे, बढ़िया पढ़ावे, उसका 30,000 ही रहेगा। वो मेहनत करे तो 30,000, ना करे तो 30,000, बच्चे को टोपी लगावे तो 30,000। शिवाजी बिजनेसमैन था बोलेगा तो भी 30,000, शिवाजी किंग है बोलेगा तो भी 30,000 बोलेगा। वो नहीं पढ़ा के क्लास में पैर ऊपर करके बैठेगी तो भी 30,000 ही मिलेगा। वो चाह के भी 3 लाख नहीं कर पाएगी। और तुम लोग उस टीचर के लाइफ बदलने का ठेका लिया है।
और वो टीचर तुमसे मिलना नहीं चाहेगी, वो तुमसे बात करना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो घबराती है कि उसे वो करना पड़ेगा जो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो टीचर ये जानती नहीं है कि जब तक वो नहीं करेगी जो उसे अच्छा नहीं लगता, तब तक उसे वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए। ये बात तो टीचर को समझ में नहीं आती। टीचर खाली एक एग्जाम्पल है। हमारे को टीचर लोग के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन बेचारे लोग के लाइफ इंप्रूव नहीं होता, इसीलिए हमारे जैसे कंपनियों की जरूरत है। इसमें बहुत लाइन में दर्द है, हमारे लाइन में बहुत सारा दर्द है। इट इज ओनली पेन एंड इनकन्वीनियंस, और कोई बहाने तुम्हें नहीं देने हैं। ये लाइन में, ये लाइन की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहाने नहीं दे सकते। और जैसे ही एमएलएम में आपने बहाने दिए, तो एमएलएम की जो ताकत है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। सेल्स का जो ताकत है ना, सिर्फ उन लोगों को ही पहुंचता है जो सेल्स में अपने आप को सरेंडर करते हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, जानकारी देते हैं, उनका ये फ्यूचर होता है। स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने आप को। वो अकाउंटेंट के लाइफ में उसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, उसको एकदम प्रेडिक्टेबल काम है। अकाउंटेंट के लाइफ में एकदम प्रेडिक्टेबल काम है। मतलब सुबह उसको मालूम है क्या करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसको मालूम है कि अकाउंट में ये इधर डालना, ये इधर डालना। उसका लाइफ पिछले 20 साल से बदलता नहीं है। उसको मालूम है बैंक रिकन्सिलेशन में 1 2 3 करना, और वो 1 2 3 करता है। काही होत नाही त्याच्या लाईफ मध्ये, तर तिकडेच राहतो, त्याचा मन तिकडेच राहतो, त्याचा विश्वास तिकडेच राहतो। एंड जैसे जैसे उम्र ढलता है, वैसे वैसे उसको लगता है कि अगले जन्म में अभी कार्यक्रम करेगा कुछ ना कुछ बड़ा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अपने जैसे कंपनियां, सेमी डायरेक्ट जैसे कंपनियां उसे उस लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तुम्हें लेकिन बहुत काम करना पड़ेगा। तुम्हारे को जो पेमेंट मिलता है उससे ज्यादा तुम्हें काम करना पड़ेगा। नाउ इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जितना कमाते हो उसमें 20% अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगाओ। 100 रुपया कमाते हो तो 20 रुपये इसके ऊपर खर्चा करो, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा करोगे तो ये रिटर्न देगा 500। फिर 500 में से 20% यानी 100 रुपया इस पे खर्चा करोगे तो ये देगा 5000। फिर 1000 रुपया इस पे खर्चा करो बाहर और अंदर, तो ये 50,000 देगा। फिर 10,000 इस पे खर्चा करो अंदर और बाहर, फिर ये 2 लाख देगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, इस पे कुछ डालते नहीं है और रोज सुबह इससे लेने के लिए रेडी रहते कि ये देत का ही नहीं, अभी कैसे देगा ये। अब वो टीचर जो अंदर माल है टीचर का, वो तो 20,000 ही मिलेगा ना। अब फिर अपने को उसको सब सिखाना पड़ेगा। फिर वो जो नया माल डालेगी टीचर, तो फिर 2 लाख होएगा। अब टीचर बोलती है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी मेरे ऊपर। तो जो आदमी, अभी गरीबों का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते खुद पे। अमीरों का उल्टा है, वो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऊपर, क्योंकि अमीरों को इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आया है कि मैं इस पे, अगर मेरे को नायर को समझ में आया, लाख रुपए इस पे खर्चा करेगा ना तो 1 करोड़ रुपया देगा। करोड़ रुपए का आइडिया इधर आएगा अगर लाख रुपए का ट्रेनिंग अपन करेंगे तो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिए, कस्टमर सबसे पहला। और मैं इसलिए बोलता हूं अपने को, अपने आप को ताकत वाला क्यों बनाना है, क्योंकि जब कस्टमर तुम्हें पहली बार देखता है, कस्टमर तुम्हें बीओपी में देखे या उसको 1 to 1 देखे या रेलवे स्टेशन पे देखे या जिधर भी आप उसको मिलने जाते हो, उधर आप जब उसको मिलते हो, सबसे पहला कस्टमर तुम्हें खरीदता है। कस्टमर पहले तुम्हें खरीदता है। बोले संतोष नायर में, संतोष नायर को देखने का, अगर मैं अपलाइन हूं और मैं किसी को पकड़ के रवि राणे को पकड़ रहा हूं, तो राणे पहला मेरे को खरीदता है, संतोष नायर को खरीदता है। नायर के साथ रहने में मजा आएगा क्या, इसके कपड़े देख के मजा आया क्या, इसकी बोली सुन के मजा आया क्या, मजा आया। तो पहला राणे नायर को खरीदेगा, उसके बाद सेमी डायरेक्ट को खरीदेगा और उसके बाद प्रोडक्ट खरीदेगा। ये रूल है। पहला वो नायर को, राणे अगर एक टीचर है
और संतोष नायर उसको जाके नेटवर्किंग में सेमी डायरेक्ट में जुड़वाने को जाता तो पहला राणे मेरे को खरीदेगा। लेकिन अगर पहली ही 5 मिनट में राणे को मजा नहीं आया संतोष नायर से, उसके कपड़ों से, उसकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आई, ऐसा लगा नहीं कि नायर एक सच्चा इंसान है, राणे को मैं अपलाइन हूं, राणे वुड बी डाउनलाइन है, बन सकता है डाउनलाइन, लेकिन राणे मेरे को मिलने के बाद राणे को लगता नहीं कि नायर पे भरोसा किया जा सकता है, नायर के कम्युनिकेशन से विश्वास नहीं आता राणे को, नायर के बातचीत से राणे को ऐसा नहीं लगता है कि नायर पैसे वाला आदमी है, नायर की बातों से राणे को ऐसा लगा नहीं कि नायर ने जिंदगी में बहुत सैक्रिफाइस करके काम किया है, तो वहीं पर वो रिजेक्ट कर देता है नायर को। सैमी डायरेक्ट के बारे में तो सुनेगा भी नहीं राणे, और प्रोडक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबसे पहला राणे नायर को खरीदता है, उसके बाद सैमी डायरेक्ट को खरीदता है, और उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदता है। जो लोगों ने अपना, जो अभी क्या करते, जो सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं है, जो ऊपर के लेवल पे, जो नेटवर्कर ने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया और बढ़िया बनाया नहीं अपने आप को, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सामने रखते हैं, पीछे कंपनी को रखते हैं, और तीसरा ये खुद छुप के खड़े होते हैं। सामने क्या रखा, प्रोडक्ट, पीछे क्या रखा, और तीसरा लेवल पे संतोष नायर खड़ा है। अब राणे इतने हैं, राणे बोलतो तू बारा, एक मिनिट, तू बारा, तू तिकडून 3rd नंबर मध्ये तू इकडे पुढे 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 पुढे, हा इकडे थांब, बघतो तुला, तुझ्याशी बोलतो, मजा नहीं आया, रिजेक्ट। देयरफॉर तुम कितना भी बड़ा प्रोडक्ट होवे, कितना भी बड़ा कंपनी होवे, सबसे पहला तुम्हें खरीदा जाएगा। देयरफॉर तुम में दम होना चाहिए, तुम में मस्ती होनी चाहिए, तुम्हारी बात ऐसी सारी निराली होनी चाहिए। एक टीचर या एक आदमी अकाउंटेंट तेरे को मिलने के बाद 5 मिनट में नौकरी रेडी, छोड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसी बातें होनी चाहिए तेरे में, ऐसा जुनून होना चाहिए तेरे में, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और अगर तू उस विश्वास के साथ 10 को मिलेगा ना तो 8 जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर तेरे में दम नहीं है, अगर तेरे में दम नहीं है तो 100 को मिल, एक भी जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तेरे को मिलके ही मजा नहीं आया। शिंदे, तेरे को मिलके ही मजा अगर नहीं आया तो काय के लिए तेरे साथ, और तू बोलता मेरे साथ 10 साल रहे, अभी 10 मिनट में मजा नहीं आया, अभी तेरे को मेरे से 10 मिनिट में मजा नहीं आया, तू बोलता है मी तुझ्या बरोबर 10 वर्ष राहणार, नको, वो बोलता नहीं मला तर हेच पटत नहीं 10 मिनट, तुम बोलता हमारे साथ रह, मत आना नहीं। सो हर टाइम जब तुम फोन पे बात करते हो, जब तुम बीओपी में बात करते हो, जब तुम चलते हो, जब बात करते हो, तुम्हारे पास इतना मसाला होना चाहिए, हर प्रॉब्लम का तुम्हारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। इसीलिए रेगुलरली पढ़ना लिखना और इस पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी, यही तो एमएलएम का काम है। तो एमएलएम में यही बोलते हैं, बुक्स, वीडियोस, ऑडियोस एंड प्रेजेंटेशंस। बुक पढ़ो, वीडियो सुनो, प्रेजेंटेशन दो, बुक पढ़ो, वीडियोस देखो, प्रेजेंटेशन, बुक्स, ऑडियोस, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है ये धंधे में। तो सक्सेसफुल लोग वो आदतें डालते ही क्यों हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? What makes them develop successful habits? वो आदत क्यों डेवलप करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों सक्सेसफुल लोग वो आदतें डेवलप करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता? क्योंकि दे आर क्लियर अबाउट देयर पर्पस, लक्ष्य, गोल, टारगेट। जैसा मेरा लक्ष्य बड़ा क्लियर है, आने वाले 70 सालों में मुझे क्या क्या करना है सब लिखा हुआ है मेरे बैग में। कितना किताबें लिखूंगा, कितना ऑडियो बनाऊंगा, क्या खरीदूंगा, क्या करूंगा, पूरा 70 साल का लिखा हुआ है, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। मेरा लक्ष्य बड़ा क्लियर है। अब आप में से कितने लोगों का लक्ष्य क्लियर है? आपके पास कोई किताब है मैडम?
जिसमें आपका पूरा लक्ष्य लिखा हुआ है। वो बोलती है आगे क्यों बैठी मैं, कोई देख रहा तब से। किताब है, लक्ष्य लिखा हुआ है, 2017 में क्या करना है, 2018 में क्या करना है, 4 बेडरूम हॉल किचन कब लेना है, अगला गाड़ी कौन सा होगा, उसके बाद वाला गाड़ी कौन सा होगा, 2025 में कौन सा गाड़ी चलाओगी, कितना रुपया बैंक में होगा, किस तरह का हेल्थ होगा, पूरा लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ, बुक में आहे का। आपके पास, इधर उधर मत देखो, है आपके पास? हस्बैंड के पास है कि नहीं पूछा नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? नहीं है। तो ये जो आइटम इधर बैठी है, इसके पास लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि आने वाले 5 साल में क्या करने का है। तो अगर आपके पास क्लियर कट बुक नहीं है जिसमें आप कैसे दिखेंगे, आपका घर कैसा होगा, आपका गाड़ी कौन सा होगा, तो आपका लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए कि मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर लूंगा 14 दिसंबर 2015 3 बजे दोपहर को। मैं थाना में, ये कॉम्प्लेक्स में, हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स में, थाना में 5 बेडरूम हॉल किचन 2900 स्क्वायर फीट का 13 दिसंबर दोपहर को 2 बजे ये तारीख को लूंगी, ऐसा क्लियर होना चाहिए। 2900 स्क्वायर फीट 13 दिसंबर 2015 3 बजे दोपहर को, हीरानंदानी अपार्टमेंट, ये रोड, ये थिंग, 14वां माला। ऐसा लिखा हुआ है क्या सब कुछ जो करने का है लाइफ में? नहीं है तो पर्पस नहीं है। जिसके पास पर्पस नहीं है वो नहीं कर सकता जो उसे अच्छा नहीं लगता। पर्पस तुमसे वो करवाती है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। लक्ष्य तुमसे वो करवाती है। वो टोयोटा फॉर्च्यूनर तुम्हें सुबह 5:15 बजे उठाती, तुम नहीं उठते हो, वो उठाती है। पर्पस। लेकिन जिसके पास पर्पस ही नहीं है, माहितच नाही काय करायचं, मालूम ही नहीं है क्या करने का, वो बोलता मैं जल्दी उठ के क्या करेगा। करेक्ट है, एक्चुअली देखा जाए तो काय करायचं, काय उठून काय करायचं, मला तर काही करायचंच नाही, मी तर टीचर, शिवाजी वॉज किंग, मला काही करायचं नाही। तिकडे म्युनिसिपालिटीहून 30,000 रुपये मिलेगा, पढ़ाया तो मिलेगा, नहीं पढ़ाया तो नहीं मिलेगा। कौन सा मेरे को घर लेने का है, कौन सा मेरे बच्चे को मेरे को फैशन डिजाइनिंग में भेजने का है सिंगापुर में, कुछ नहीं है। टीचर हैप्पी, उसका हस्बैंड उससे भी हैप्पी, दोनों आइटम एकदम सुखी। लाइफ में कुछ नहीं उनका पर्पस। सो पर्पस होना चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूं, What was your purpose to join Semi Direct? आपका पर्पस क्या था? अब अगर 30,000 रुपया लेने वाली टीचर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा के लिए अगर सेमी डायरेक्ट में ज्वाइन करती है, क्या बोला मैंने? 30,000 कमाने वाली टीचर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने के लिए जुड़ती है सेमी डायरेक्ट, तो क्या ये एक पर्पस है? यस और नो? यस और नो? नो। क्योंकि 10,000 के लिए उसे वो करना पड़ेगा जो उसे अच्छा, और 30,000 रुपया उसको अच्छा लगने वाला करके 30 मिल रहा है। तो अच्छा नहीं लगने वाला चीजें करके 10 के लिए थोड़ी ना काम करेगी। लेकिन अगर टीचर बोलती है चायला आता मला टीचरचं नोकरी करायचंच नाही, बस झाला, आता मला काहीतरी मोठं करायचं है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग, मेरे को कुछ बड़ा करने का है, मेरे को महीने का 2 लाख चाहिए, वो पर्पस है क्या?
देयरफॉर तुम लोग किसी को 10,000 रुपए के लिए जुड़ाएगा ना तो जुड़ेगा, लेकिन उतना ही स्पीड से बाहर निकलेगा। लेकिन 2 लाख के लिए जो आइटम आई है वो करेगी जो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है अभी अगर मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे 2 लाख मिलेगा, जो 30,000 से 6-7 गुना बड़ा है। तब वो करेगी जो उसे अच्छा नहीं लगता। फक्त 10,000 साठी ती काही करणार नहीं। और 2 दिन मार्केट में जाके फिर तुमको सुनाएगी, शिंदे साहब माझ्यामध्ये ते आहेच नाही, माझ्या क्वालिटीज नाही, मी तर टीचर, माझ्याशी कसं होणार, और वो रोज रोएगी और तुम्हारे को इतना रोएगी कि तुमको भी लगेगा उसके साथ टीचर बन जाने के लिए। तुम एमएलएम छोड़ के उसके साथ चक्कर में चला जाएगा, टीचर के चक्कर में। So what was your purpose to Sammy, to join Sammy Direct, or what is your purpose today? आज तुमचा पर्पस काय है? और हर इंसान जो इधर बैठा, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तुम्हारा अपना अलग पर्पस होना चाहिए। खाली हस्बैंड का ही नहीं, खाली वाइफ का अलग पर्पस नहीं, तुम सबका इंडिविजुअल पर्पस होना चाहिए, इंडिविजुअल। तो मेरे को लोग मिलते हैं, सर मेरा है ना बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा है ना, मेरा हस्बैंड है, मेरा वाइफ है, मेरे 1.5-2 बच्चे हैं, तो मेरा पर अभी क्या तूर दाल का भाव भी बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव भी बढ़ रहा है, तूर दाल का भाव, तो ये मेरा पर्पस है। ओके, यस और नो? ये पर्पस हो सकता है कि मेरे बच्चे हैं। कई लोग मेरे को बोलते सर मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मैं चाहता हूं उनके लिए कुछ अच्छा करूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, इसके लिए मैं एमएलएम जुड़ा। तो क्या ये पर्पस है? यस और नो? नो। इज दैट इनफ पर्पस? नो नो नो। ये पर्पस में दम ही नहीं है। और क्यों दम नहीं है? मैं हमेशा बोलता हूं इसलिए दम नहीं है क्योंकि it is easy to adjust ourselves to the hardships of a poor living than it is to adjust ourselves to making a better one. आसान है जिंदगी में एडजस्ट करके जीना, आसान है जिंदगी में एडजस्ट करके जीना, छोटी जिंदगी में एडजस्ट करके जीना बहुत आसान है। लेकिन जिंदगी को बड़ा बनाना यानी अपना एडजस्टमेंट की इस दुनिया से निकल के कायतरी मोटा और बड़ा करना आसान है। एडजस्ट करके जीना, इट इज इजी टू एडजस्ट करना बहुत आसान है। एडजस्ट करना, इट इज इजी टू एडजस्ट अवरसेल्फ टू द हार्डशिप। एक गरीब जिंदगी की तकलीफों को बर्दाश्त करना आसान है, एक गरीब जिंदगी की तकलीफों को बर्दाश्त करना आसान है, लेकिन जिंदगी को अमीर बनाना बहुत मुश्किल है। एक एग्जाम्पल देता हूं, एकदम क्लियरली तुमको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा देता हूं हर आदमी के लिए। ए तेरा नाम क्या है? लक्ष्मण। कहां रहता तू? कलवा। पूरा नाम क्या तेरा? लक्ष्मण पेडनेकर। शादी विधि किया है? नहीं किया। उम्र क्या तेरा? 22 चालू है। 22 और तू चालू है कि 22? कलवा में बैठ। कौन सा रोड क्या है तेरा? कलवा में कौन सा रोड में रहता है? नहीं, ईस्ट में। रोड का नाम तो होगा ना, सेनापति बापट रोड, महात्मा गांधी रोड। नहीं तो कोई तो एक रोड बोल तेरा जिधर आजू बाजू में। हाँ, पौनपाड़ा। चल, अब ये लक्ष्मण की कहानी सुनो मेरे मुंह से। लक्ष्मण बोल के ये लड़का, लक्ष्मण पूरा नाम क्या है? पेडनेकर। लक्ष्मण पेडनेकर बोल के ये लड़का, 22 बरस का ये लड़के का कहानी मेरे मुंह से सुनो। इसको समझाने के लिए, करने की कार्यक्रम को समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। लक्ष्मण पेडनेकर पौनपाड़ा कलवा जिले का रहने वाला, थाना के बाजू में रहने वाला ये आदमी मस्त बीकॉम वगैरह करके लाइफ में बैठा हुआ था। तो उसको मिल गया एक सैमी डायरेक्ट का अपलाइन सोले, और सोले जाके उसके साथ सो गया और उसको जुड़ा दिया।
जुड़ा दिया तो थोड़े ही टाइम में उसने थोड़ा सा पैसे वैसे कमाए, उसने थोड़ा सा पैसे वैसे कमाए और पैसे थोड़ा सा, मतलब इसको तो लाइफ में ये नौकरी कर रहा था, एक अकाउंटेंट का 6,000 रुपया नौकरी मिल रहा था, तो वो यहां पर आ गया तो उसको 8-9 हजार रुपया 2-3 महीने में मिल गया। तो उसने उसको सब पैसे पहले का बचा बचा के उसने खरीद लिया एक हीरो होंडा स्प्लेंडर। अब ये रोज हीरो होंडा स्प्लेंडर के ऊपर चढ़ के बैठता है और कलवा के गलियों में ये गाड़ी चलाते रहता है। लड़कियों को देखता तो थोड़ा रेस करता है और लक्ष्मण पेडनेकर का लाइफ एकदम बढ़िया हो जाता है। 2 साल के बाद अब ये उसका इनकम सेम ही है, उसका इनकम कुछ बदला नहीं है क्योंकि उसका कोई पर्पस विर्पस है नहीं। गलती से सोले उसके साथ सो गया था, गलती से उसने थोड़ा सा पैसे कमा लिए और उसका एकदम सेम ही जीवन है, कुछ बदला नहीं है। तो ये जब 2 साल के बाद 22 बरस के 24 बरस जब होता है, इसका बाप इसको पकड़ता है, बोले तुला लग्न वगैरह करे से कि नहीं, शादी विधि करने का है कि नहीं। तो ये मेरे को पेडनेकर, लक्ष्मण पेडनेकर बोलता है, पप्पा मैं तो बचपन से ही रेडी था, आपने इतना लेट कर दिया। तो कलवा जिले का रहने वाला कल्याण के गांव में से इसके बाप ने एक आइटम को उठाया, रुक्मणी नाम था उसका। कल्याण के गांव में से रुक्मणी को उठाया और लक्ष्मण पेडनेकर के साथ इसका पूरा साकर पूरा पूरा बुड़ा करके इसका सेटिंग कर दिया, इसका शादी हो गया। उस जमाने में ये लक्ष्मण बहुत दुबला पतला था और ये रुक्मणी भी एकदम कच्ची कली स्लिम ट्रिम थी। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। ये लक्ष्मण पेडनेकर चढ़ के बैठता है, अपना कुंडी एडजस्ट करता है और बाद में इसको बोलता है किसको, रुक्मणी को, तू भी चढ़। और हीरो होंडा ने 2 आइटम के लिए जगह रखा है, तो ये चढ़ के बैठती है और ब्यूटीफुली लाइफ ऐसा चलता रहता है। सडनली 2 साल के बाद एक आइटम आया, तो वो आइटम अभी 2-3 बरस का हो गया। अब तब तक इसकी औरत का थोड़ा बेस बढ़ गया और इसका भी थोड़ा पेट और बाकी का सेटिंग बिटिंग बढ़ गया। अब ये लक्ष्मण भी बड़ा हो गया, रुक्मणी का भी बड़ा हो गया, साथ में ये 2-3 बरस का आइटम है। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। ये चढ़ता है, एडजस्ट करता है, अपनी रुक्मणी को बोलता तू थोड़ा पीछे जा, ये पीछे जाती है, ये भी थोड़ा पीछे आता है और 3 बरस का वो आइटम को टाकी पे बिठाता है और एडजस्ट करके कलवा के गलियों में ये लोग जिंदगी निकालते हैं। और 2 साल में दूसरा है, 2 आइटम, एक और आइटम आया। अब वो आइटम 3 बरस का हो गया, तो पहले वाला 6 बरस का हो गया। 6 बरस वाले को टाकी पे बिठाएगा तो पप्पा को दिखेगा नहीं और तब तक रुक्मणी ने सब हद पार कर दी। अब हीरो होंडा की कहानी सुनो। ये चढ़ता है और बैठता है, इसका ही पूरता नहीं है लक्ष्मण पेडनेकर का। तो ये अपनी औरत को बोलता है तू रुक 1 मिनट, सेटिंग, बच्चे लोग को बोलता है रुक, औरत को बोलता है तू चढ़, 1 पीस कैरियर के बाजू रख, 1 पीस एक सीट पे रख। और ये जो 6 बरस का आइटम है इसको बीच में बिठाता है, उसका तो 1 पीस बाजू चला गया, बीच में ये बैठता है और इसको उठा के टाकी पे बिठाता है 3 बरस का और एडजस्ट करने की आदत लग गई है। आसान है एडजस्ट करना, आसान है एडजस्ट करना। इट इज इजी टू एडजस्ट आवरसेल्व्स। ये तकलीफें झेल रहा है, एक्चुअली इसको किस चीज की जरूरत है, इसको कार की जरूरत है, लेकिन कार के लिए उसे उससे मिलना पड़ेगा जो उससे मिलना नहीं चाहता और उससे वो बात करनी पड़ेगी जो वो उससे करना नहीं चाहता। लेकिन एडजस्ट करना आसान है, खाली कुंडी तो एडजस्ट करने का है। बाकी अभी एक और आइटम आया तो उसको हेडलाइट में बिठा देगा ये पेडनेकर, वो हीरो होंडा कर देगी, लेकिन ये पूरा सांड लोग चढ़ते रहेंगे उसके ऊपर। अभी समझो ये रहता है 2 रूम किचन, 2 रूम खाली 1 बेडरूम 1 हॉल किचन। अभी इसके साथ इसका माँ बाप भी रहता है। संडे के दिन सुबह इसको अपनी रुक्मणी को चुम्मा लगाने का मूड आया। अब एक रूम में बाप बैठा है, दूसरे में बच्चे लोग खेल रहे हैं। अब इसको मूड 11 बजे आया तो ये अपनी औरत को बोलता है संध्या काली करूं,
सकाळी मूड आया, संध्याकाळी डिलीवरी है, 11 बजे सब सोने के बाद कार्यक्रम करेंगे करके एडजस्ट करता है। लेकिन अगर उसको अभी 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है तो उसे उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो उससे मिलना नहीं चाहते, और उससे वो बात करनी पड़ेगी जो करना नहीं चाहता। वो अगर ऐसा किया और उसने जाके 4 बेडरूम लाया, एक में माँ बाप को डाल के लॉक करो, दूसरे में बच्चे लोग को डाल के लॉक करो, तीसरे में फुल डे कार्यक्रम चालू रखो। तो हम लोगों को क्या है ना, एडजस्ट करने की आदत लग गई है। हम लोग हीरो होंडा में भी एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग छोटा घर में भी एडजस्ट कर लेंगे, हमको सैली एडजस्ट करके एडजस्ट करने की आदत लग गई है। आसान है एडजस्ट करना, बहुत आसान है, काय सोचने का ही नहीं। तकलीफ तो होंडा को ही है, हीरो होंडा, ये लोग को कुछ नहीं, लोगों को खाली चढ़ने का ही है। आसान है एडजस्ट करना, लेकिन मुश्किल है जिंदगी को अमीर बनाना। एंड यही रीजन है कि तो मैं हमेशा कहता हूं, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस। आपका पर्पस आपसे वो करवाती है जो आपको अच्छा नहीं लगता। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्पस दैट फोर्सेस यू टू डू व्हाट यू डोंट लाइक टू डू। आप मार्केट में जाते हैं सेमी डायरेक्ट में आदमी को जुड़ाने के लिए नहीं, आप मार्केट में जाते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर लेने के लिए। आप मार्केट में नहीं जाते हैं कि मेरे को आज लोगों को जुड़ाना है। मार्केट में आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको 4 बेडरूम हॉल किचन दिसंबर 14 तारीख को लेना है। आप मार्केट में पर्पस के लिए जाते हैं, लेकिन जिसके पास पर्पस नहीं है ना, वो सोचता है मैं मार्केट में क्यों जाऊं, और उसका अपलाइन रोज उसको बोलता है मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा मैं मेहनत काय को करू, का करू, कशासाठी करू, मग काही माहीतच नाही मला काय घ्यायचं आहे, मग का करू। सो माय डियर फ्रेंड्स, पर्पस देखो बड़ा होना चाहिए। वो टीचर जब आई 10,000 के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो छोटा पर्पस हो गया। वो 10,000 के लिए दुनिया भर का थप्पड़ नहीं खाएगी पब्लिक का। हाँ, 2 लाख के लिए तो थप्पड़ देगी वो खाने के बाद, 10,000 के लिए नहीं करेगी। हम में से कई लोग एमएलए में सबसे बड़ा गलती क्या कर देते, 30,000 कमा रही है उसको 10,000 के लिए लेके आते, 10 दिन रहती हो, क्योंकि उसको तकलीफ होता है, बोलता है इतना मेहनत करो 10,000 के लिए, और फक्त क्लास में खड़े रह के शिवाजी वैसे किंग इतना बोलने 30,000 मिलता है ना। कितना आसान है, बोली शिवाजी वैसे किंग, कितना उसको क्वार्टर पिलाएगा तो भी वही बोलेगी शिवाजी वैसे किंग, मतलब फुल टाइट होएगा तो भी शिवाजी किंग ही रहेगा। काय करायचंच नाही, फक्त तिकडे जायचं। और बच्चे लोग भी कुछ कर नहीं सकते, बेचारे बैठे रहते, वो टीचर के खिलाफ कुछ बोलने वाले नहीं है। तो टीचर का एक्चुअली काम आसान है, 30,000 के लिए, 2 लाख के लिए वो फटके खाएगी। एंड देयरफॉर जब जुड़ाते हो तो बड़े सपने वाले को जुड़ाओ, ये 10,000 वाला आइटम को लेके मत लेके आओ, वो तुम्हारा लाइफ को बर्बाद कर देगा। सो पर्पस कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस। मतलब मैंने बोला ना, मारुति कार, फिर एस्टीम गाड़ी, फिर हुंडई सोनाटा, फिर ई क्लास, फिर एस क्लास, फिर रोल्स रॉयस, वन आफ्टर कंटिन्यूस होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। क्योंकि भागने के लिए कोई कारण चाहिए, क्योंकि अगर नहीं तो पहला गाड़ी ले लेंगे ना तो एकदम सेट हो जाएंगे अपन, बोला अब तो झाला माझा, 1 बेडरूम था तो 2 बेडरूम हो गया तो खलास हो गया। नो, 2 बेडरूम के बाद 4 बेडरूम, 4 बेडरूम बंगला। इस तरह से पर्पस कंटिन्यूस रहना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए। तीसरा, सेंटिमेंटल रहना चाहिए। सेंटिमेंटल एंड इमोशनल बोले तो सचमुच में देखा जाएगा तो अपन छोटा जिंदगी भी जिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को मेरी बीवी को दुनिया की बेहतरीन जगह दिखाने। जैसे मेरी वाइफ सिंधु, मैं बोलता हूं तू बोल तेरे को कौन सा जगह दे, बोले पेरिस। मतलब चल, क्या चाहिए तेरे को, बोले मेरे को एक गाड़ी लेके दे फोर्ड, मैं बोला चल।
मतलब वो जो सोचती है ना 10 बजे, मैं 11 बजे तक सेट कर देता हूं। नहीं तो अपने से शादी करके क्या फायदा होगा, किसी और से कर लेती। अपने से शादी किया तो 10 बजे सपना है तो 11 बजे डिलीवरी होना चाहिए, और उसके लिए अपन उतना मराएंगे ना, अपन उतना काम करेंगे। तो ये सेंटिमेंटल बात है। थोड़े दिन पहले बोला मेरा है ना गाड़ी पुराना हो गया 11 बजे। मैं बोला क्या हुआ, तो बोला नहीं मेरे को मूड नहीं आ रहा अभी ये गाड़ी। मेरा क्या चाहिए, बोला ये गाड़ी। बोला चल। बोला किधर, बोला चल ना गाड़ी लेके देता हूँ। वो 10 बजे बोला, मैं बोला चल ना चलते हैं अब गाड़ी लेते। एक्चुअली इमोशनल बात है, दिल की बात है। दिमाग से देखा जाएगा तो ऑलरेडी उसके पास गाड़ी है और वो गाड़ी नया है, उसमें नया लेके देने के मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर उसको मूड आया ना तो अपन लेके देना चाहिए। अपना बाप को मूड आया, बोले मेरे को गाड़ी लेने, 65 की उम्र में मेरा बाप बोलता है मेरे को गाड़ी लेके दे। मेरे को मालूम है इसको लेके देगा तो रोज ठोकेगा वो, लेकिन क्या है लेके देने का। अपना बाप के लिए अगर अपन ने इतना नहीं किया, अपना मां के लिए अगर अपन ने नहीं किया, तो ये सब इमोशनल बातें हैं। सचमुच में देखा जाएगा तो अपन रेलवे स्टेशन पे भी जी सकते हैं, हीरो होंडा में अपना अंतिम संस्कार हो सकता है। तो बड़ा गाड़ी का क्या जरूरत है, एस क्लास चलाने का क्या जरूरत, रोल्स रॉयस का तो जगह जरूरत ही नहीं है। बात जरूरत की नहीं है, बात दिल की है। मूड आ गया, बस मूड आ गया, जरूरत नहीं, चाहत। जरूरतों के हिसाब से देखा अपन रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न रेलवे जिंदाबाद, बीएसटी जिंदाबाद। लेकिन बात जरूरत की नहीं है, बात चाहत की है, डिजायर। इसीलिए अपने को पर्पस बड़ा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी बोलते मेरे को पप्पा मेरे को पूना में सेंट बेसिस में जाने का। मतलब कितना पैसा, बोला 40 लाख। मैं बोला चल कर। कल वो बोलती है अमेरिका जाने का, तो अपन करने देंगे, क्योंकि अगर अपनी बेटी है तो अपन इतना काम क्यों कर रहे हैं, उनको बढ़िया लाइफ देने के लिए। अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने साथ काम करने वाले लोग लाइफ में आगे बढ़े, इसीलिए तो अपन सब कुछ करते हैं। सो पर्पस शुड बी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल। तो मेरे लाइफ में बहुत पर्पस थे। जब मैं सेल्समैन था तो मेरा पर्पस ग्रुप लीडर का था। फिर मैं बोला ये मैं सुपरवाइजर बनूंगा, ये तारीख तक मैं ब्रांच मैनेजर बनूंगा, ये तारीख तक मैं डिप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बनूंगा, ये तारीख तक डिविजनल सेल्स मैनेजर बनूंगा, मैं सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बनूंगा, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूं, मैं एरिया सेल्स मैनेजर बनूंगा, मैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर बनूंगा, ये तारीख तक मैं जनरल मैनेजर बनूंगा, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा। मेरी बड़ी बहन का शादी, फिर मेरा पर्पस था ये बड़ी बहन का शादी ये तारीख तक कराना है धूमधाम से। फिर मैं बोला छोटी बहन का शादी ये तारीख तक करना है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए। जितना मैंने पैसा डिसाइड किया उसके पीछे भागा भागा भागा, उतना ज्यादा वैक्यूम क्लीनर बेचा। वैक्यूम क्लीनर बेचना तो बहाना था, शादी बहन का कराना वो पर्पस था। तो सेमी डायरेक्ट तो बहाना है, सेमी डायरेक्ट तो बहाना है उस 4 बेडरूम हॉल किचन के लिए, वो बड़ा गाड़ी लेने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए। आज हमने सेमी डायरेक्ट किया है। फिर मेरे को ट्रेनिंग कंपनी चालू करने का था, फिएट गाड़ी 92 में खरीदने का था, 96 में मारुति खरीदने का था, 2000 में मारुति एस्टीम खरीदने का था। फिर हमने बोला कि सोनाटा गाड़ी खरीदेंगे 2002 में। फिर हमने बोला 2007 में मर्सिडीज बेंज ई क्लास खरीदेंगे। फिर एस क्लास मर्सिडीज 2010 में हमने खरीदा। इस तरह से हमने कहा कि नया घर लेंगे, उस घर को रिनोवेट करेंगे, डैडी का घर खरीदेंगे। और फिर उसके बाद अपन ने बोला कि एल्डर डॉटर का बर्थडे पे अपन ये ऑफिस लेंगे, नया ऑफिस को ऐसा रिनोवेट करके ये तारीख को घुसेंगे, नवी मुंबई में ऑफिस लेंगे, उसको रिनोवेट करेंगे। आई वांटेड टू ट्रैवल विथ माय ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ माय फैमिली। आई वांटेड टू बाय रोलेक्स वॉच एंड मॉन्ट ब्लैंक पेन। और फिर आई वांटेड टू ट्रैवल टू चाइना एंड यूएसए। और फिर हमने कहा कि मेरे को अपने आप को इंश्योर करने का था, 12 करोड़ रुपए में मेरे को इंश्योर करने का था अपने आप को, 7 लाख रुपया दिन का कमाने का था। हर महीने में जब मैं रिटायर होएगा मेरे को 20 लाख रुपया चाहिए, तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया है। 20 लाख रुपया मेरे को रिटायरमेंट पे मिलना चाहिए हर महीने में। तो मेरे को सेविंग करने का है, उसके लिए फिर अपने को इतना हर महीने में इतना सेविंग करना पड़ेगा। ये सब चीजें अभी नहीं किया मैंने। अगर 20 लाख रुपया महीने का मेरा रिटायरमेंट के बाद मेरे को हर महीना नहीं किया तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी मेरे को अंदर कर देगा क्या?
नहीं करेगा तो नहीं किया, लेकिन बात क्या है, वो टाइम पे भी अपने को राज करने का है। बस वो टाइम पे अपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करने का कि अपनी 3 बेटियां या किसी के ऊपर, सन इन लॉ के ऊपर। अपने को तभी भी राज करना है। सन इन लॉ को 2 रुपये चाहिए तो अपन दे देवे, उससे अपन नहीं लेवे। तो कहने का मतलब ये है कि अपना ये सब पर्पस है। फिर मेरे को इंटरनेशनल स्पीकर बनने का था, फिर मेरे को टॉक शो में काम करने का है, रेडियो और टीवी पे टॉक शो करने का है, फिर मेरा ऑडियो और वीडियो को ऑल इंडिया में पहुंचाने का है, मेरे को 10 प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनने हैं, मेरे को 10 सेमिनार लेने हैं 10-10 लाख लोगों का, क्योंकि मैंने वो कभी किया नहीं। 1000 ट्रेनर रखने का है, 36 अपना यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में इंडिया में 36 ऑफिस खोलने का है इंडिया में, 1 ऑफिस हर कंट्री के कैपिटल में खोलने का है स्मार्ट का, 5 फिल्मों में एक्ट भी तो करने का है। क्या क्या लफड़े बाकी है, आता काही केलंच नाही, आता करायचं आहे। अभी तो अंगड़ाई ले रहा हूं, आता काहीतरी करायचं आहे। आता फक्त 50 हुआ है, कितना काम बाकी है। गिटार सीखने का है, गोल्फ खेलने का है, तबला सीखने का है, 10 नया लैंग्वेज सीखने का है, एमबी वैली में बंगलो लेना है, एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारे एम्प्लॉयज का, स्टूडेंट्स को, बच्चे लोग को ये करना है। टाउनशिप बांधना है स्मार्ट का, सेल्समैन लोग के लिए क्लब बनाना है। I want to visit 2 countries every year for the next 50 years. इस तरह से I want to talk to presidents and prime ministers. यूनाइटेड नेशन में खड़े रह के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लोग से बात करना है। स्मार्ट को दुनिया का सबसे बड़ा नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस का ट्रेनिंग कंपनी और एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशन कंपनी बनाना है। 1000 किताब लिखने का, अभी तो एक ही किताब लिखा है जो 5 लैंग्वेज में है। 1000 किताब लिखने का है, 10,000 ऑडियो बनाने का, 200 ऑडियो ही बना है ना अभी तक। कितना काम बाकी है। इंडिया और पाकिस्तान को एक कंट्री बनाने का है। लफड़े बड़े बड़े हैं मेरे। मिडिल ईस्ट में मेरे को पीस टॉक्स में हाथ डालने का है। जो अभी मारा मारी चल रहा है मिडिल ईस्ट में कंट्रीज के बीच में, वहां हाथ डालना है। 50,000 करोड़ चैरिटी के लिए जमा करना है स्मार्ट फाउंडेशन में। कितने काम है भाई, कहां आराम है। अभी तो काम चालू करने का है, अभी तो अंगड़ाई ले रहा हूं। मैंने अपने माँ और बाप के लिए जो चीजें दिया, जो मैं अपने वाइफ के लिए दे रहा हूं, जो मैं मेरे बच्चे लोग के लिए दे रहा हूं, जो मैं मेरे सिस्टर और फ्रेंड्स के लिए दे रहा हूं, जो मैं अपने स्टाफ और लीडर्स के लिए करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, पर्पस मस्ट बी स्मार्ट नॉट विजनरी। स्मार्ट यानी SMART, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड। जैसे मैंने बोला 4 बेडरूम हॉल किचन, 2900 स्क्वायर फीट, हीरा नंदानी अपार्टमेंट, 14 माला, 13 दिसंबर 3 बजे। स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक। ऐसा नाही तर बोला मला घर घ्यायचं, कधी घ्यायचं, कधी घ्यायचं, किती मोठं घ्यायचंय। मोठं म्हणजे काय, किती स्क्वेअर फीट, कधी, कुठे, कुठला मालावर। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल यानी हमने बोला 2900, तो आप मापेंगे तो 2900 से ज्यादा होएगा तो बोलेगा बराबर नायर साहब ने जो बोला किया। अटेनेबल होना चाहिए, मतलब अपनी औकात बढ़ा के होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। खाली फालतू में बात किया लेकिन उसके लिए काम नहीं करेगा, काम नहीं चाहिए। टाइम बाउंड, T फॉर टाइम बाउंड, टाइम होना चाहिए। 13 दिसंबर दोपहर को 3 बजे, हीरा नंदानी, ऐसा पर्पस होना चाहिए। लाल कलर का मर्सिडीज S क्लास 2017 4 बजे दोपहर को लेने का है, ऐसा क्लियर होना चाहिए। विजनरी नहीं, एक दिन मेरे को गाड़ी लेने का, ऐसा नहीं। ये तारीख, ये दिन, ये ऐसा। पर्पस मस्ट बी बिग, बड़ा होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, पर्पस मस्ट नॉट बी लॉजिकल। लॉजिकली देखा जाएगा तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं। लॉजिक से देखा जाएगा तो क्या जरूरत है, मेरू क्या लेना देना इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लॉजिकली देखा जाए तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ये सब दिल की बात है,
लॉजिक में क्यों? लॉजिक में कोई इंस्पिरेशन है क्या? लॉजिक में कोई इंस्पिरेशन नहीं होता, लॉजिक में कोई हिम्मत नहीं होता, हिम्मत का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। लॉजिकली देखा जाएगा तो कोई ये नहीं, मेरे को 500 डायमंड बनाने हैं, लॉजिकली देखा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को बनाने का है, क्योंकि लॉजिक में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई करेज नहीं है, लॉजिक में कोई हैप्पीनेस नहीं है, लॉजिक में सिर्फ सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन मेरे को लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को एक ही लॉजिक समझ में आता है पिछले 30 साल में, जितना मैं औरों के लिए करूंगा उतना अनजाने में मैं अपने लिए ही कर रहा हूं। मैंने जितना लोगों को डायमंड बनाया ना, तो मैं ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाऊंगा। जितना जितना मैं औरों के लिए करूंगा, और तुम्हारा सैमी डायरेक्ट का वो जो फ्लिपकार्ट है उसमें लास्ट में लिखा है, यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। तुम्हें जिंदगी में वो सब मिलेगा अगर तुम औरों को उनके मंजिल तक पहुंचा दोगे, तो तुम्हारी मंजिलें पूरे हो जाएंगे। तुम्हें जिंदगी में सब मिलेगा अगर तुमने औरों को उनको अपने मंजिल तक पहुंचा दिया। तुम्हारा काम सुबह शाम दिन रात एक ही है, औरों के जिंदगी में खुशहाली लाओ, औरों के लाइफ को बढ़िया बनाओ। पकड़ो एक एक टीचर लोगों को और 3-3 लाख रुपया कमाने का रास्ता दिखाओ, उनका लाइफ को सुधारो। पकड़ो एक एक आदमी लोगों को। लाइफ में लॉजिकली देखा जाएगा तो उस टीचर की लाइफ को बदलने का अपन ने ठेका नहीं लेके रखा, लेकिन लॉजिक की बात ही नहीं, करेज की बात है, हिम्मत की बात है, मस्ती की बात है, दिल की बात है कि हमने ऐसे लोगों के लिए क्या किया। एंड देयरफॉर मैं हमेशा बोलता हूं, अनकंडीशनली, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, अनकंडीशनली सरेंडर योरसेल्फ टू योर पर्पस। अनकंडीशनली अपना जो लक्ष्य है, जो पर्पस है, जो गेम है, जो एम है, जो टारगेट है, अपने आप को अनकंडीशनली सरेंडर करो। जैसे मैं रात को बोलता हूं ना, घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा सेल नहीं होगा। अनकंडीशनल कंडीशन को, आई लो ट्रेन कितने बजे, लास्ट 1:30 बजे का वो ट्रेन जाएगा तो मैं कैसे जाऊं? अबे तेल लेने गया, ट्रेन कल सुबह देखेंगे, जिंदा रहा तो माल बिकना चाहिए, फिर देखेंगे ट्रेन कौन सा पकड़ने का। अनकंडीशनली कोई कंडीशन मत डालो, अपना लक्ष्य रखो और अपना जीवन को उस लक्ष्य के पीछे लगा डालो। अनकंडीशनली कोई कंडीशन नहीं डालना उस लक्ष्य और तुम्हारे बीच में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनली, जैसे गांधी जी का लक्ष्य था फ्रीडम ऑफ इंडिया, आजादी, यह लक्ष्य था, और उस लक्ष्य और गांधी के बीच में कोई नहीं आया। उन्होंने बोला मैं अपने आप को अनकंडीशनली सरेंडर करता हूं। 1 मिनट के लिए सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर गांधी ये बोलता देखो मैं फ्रीडम के लिए फाइट करेगा, सैटरडे संडे फाइट नहीं करेगा, कंडीशन डाल दिया। मैं फ्रीडम के लिए फाइट करेगा, 6 बजे के बाद फाइट नहीं करेगा। क्या है कि अपना कस्तूरबा के साथ सेटिंग रहता है। फ्रीडम के लिए फाइट करेगा, मैं सैटरडे संडे फाइट नहीं करेगा, 6 बजे के बाद फाइट नहीं करेगा। अगर इन्होंने मेरे को डंडे से मारा तो मैं फाइट नहीं करेगा, मेरे को जेल में डाला तो फाइट नहीं करेगा, यहां से डांडी तक मैं चल के नहीं जाएगा, और मेरे को गाड़ी में भेजो और ऐसी गाड़ी चाहिए, और मेरे ऊपर कोई गाली भी नहीं देना चाहिए, तो मैं फ्रीडम के लिए फाइट करूंगा। तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा गांधी कंडीशन डालता तो हमें आजादी मिलती? यस और नो? नो। गांधी बोला तू डंडा मार, अंडा मार, जो मनता कर, तेरे से हम साली आजादी लेंगे। मेरी उस आजादी का ड्रीम और सपना और लक्ष्य और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। मैं अनकंडीशनली सरेंडर करूंगा। कस्तूरबा है या नहीं है, मेरे को ब्रिटिश लोग ने अंदर डाला, जेल में डाला, डंडा मारा, अंडा मारा, कुछ भी किया, मेरे खिलाफ आवाज उठाया, मेरे को तकलीफ दिया, मेरे बच्चे लोग को किडनैप किया, जो मनता कर, लेकिन तेरे से आजादी लेके रहेंगे। लेकिन हम तुमको ये नहीं बोलते कि तुम देश की आजादी के लिए, या गांधी ने देश की फ्रीडम के लिए फाइट किया, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो फाइट करो। मैं तुमको नहीं बोलता हूं कि तू इंडिया के लिए कुछ कर, या महाराष्ट्र के लिए कुछ कर, या भाई इस देश के, बाबा तू ऐसा बड़ा बड़ा काम मत कर। तू खाली अपना जो एडजस्टमेंट वाला लाइफ है ना, उससे तो उठ, तू कम से कम वहां से तो उठ। तू वो हीरो होंडा की
वहां से तो उठ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अनकंडीशनली आज रात को बुक निकालो और गोल सेट करो, पर्पस सेट करो, लक्ष्य सेट करो, डेट डालो सब, और अपने कंपनी से मोहब्बत करो, अपने नेटवर्क से मोहब्बत करो, अपने डाउनलाइन अपलाइन और सबसे मोहब्बत करो, बिना कोई कंडीशन डाले अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर करो तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच में। मेरा विश्वास है कि यहां बैठा हुआ हर आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता वहां तक पहुंचने के लिए, सिवाय तुम। आज तक जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ, आगे भी तुम्हारे वजह से होगा। तो अगर बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट हुआ है तो तुम्हारे वजह से, और अगर नहीं हुआ है तो तुम्हारे वजह से। तुम जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से है। आज रात से ऐसी आदतें डालो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही तुम वो सब करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और अनकंडीशनली अपने आप को सरेंडर करो। यही बोलने के लिए मैं अंधेरी से यहां तक आया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।